Okay, so I'll go ahead with next topic, next question. Superposition of SHMs and resonance. तो यहाँ पे आप दो SHM को combine करके you will treat this as a single SHM. Simple सा question है. The motion of a particle varies with time according to the relation y equals to a sin omega t plus cos omega t. Then the motion is oscillatory but not SHM. The motion is SHM with amplitude A. The motion is SHM with amplitude A root 2. The motion is SHM with amplitude 2A. तो अगर आपको याद होगा जो एक्सपेक्टेड है कि याद होना चाहिए, हम लोगों ने ये शो किया है इन योर थ्योरी क्लासेस एंड आल्सो इन वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस कि जब आपके पास y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t हो तो बेसिकली दिस इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस a cos omega t. So the addition of two simple harmonic motion is again simple harmonic. Condition था frequency should be same. Frequency same है yes. Phase angle same है yes. तो SHM है yes. तो resultant amplitude अगर आपको याद होगा it is under root of पहले SHM का square प्लस दूसरे SHM का square. So resultant amplitude is under root of 2a square तो root 2a. तो the motion is SHM but with amplitude of a root 2. Done. चलो अगला क्वेश्चन. Next question. The resultant of two rectangular simple harmonic motions of the same frequency and unequal amplitudes but differing in phase by pi by 2s. Simple का क्वेश्चन है ये भी. The resultant of two rectangular simple harmonic motions of the same frequency, frequency n same होना मतलब ओमेगा सेम है, right? And unequal amplitudes, तो amplitude भी equal नहीं है, unequal amplitudes है. अगर एक का A1 है तो दूसरे का A2 है, या एक का A है तो दूसरे का B है, but differing in phase by pi by 2. Differing in phase by pi by 2 is very important. So let's say we have the first one as A sin omega t. So the second one will be B sin of omega t plus pi by 2. क्योंकि phase difference is pi by 2. पक्का पक्का. What is sin of omega t plus theta? मैंने क्वेश्चन गलत पूछा, तुम फिर भी आंसर दे रहे हो. I should have asked you what is sin of pi by 2 plus theta. तो cos theta. I asked you what is sin of omega t plus theta. You are saying cos theta. ऐसा नहीं होता है. Sin of pi by 2 plus theta is cos theta. तो y2 equals to b cos omega. राइट. अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो ऐसा पूछा है. वेदर the resultant of these two is a simple harmonic motion, whether it is circular, whether it is elliptical or it is parabolic. तो ऐसे केस में क्या करना, यू हैव टू इक्वेशंस नाउ. इक्वेशन नंबर 1 and 2 जस्ट स्क्वायर एंड ऐड. क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि एक में अगर साइन है दूसरे में कॉस है और फेज सेम है तो स्क्वायर एंड ऐड ही कर लेना होता है आपको. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग you will have y1 square plus y2 square equals to a square sin square omega t plus b square cos square omega t. So you have y1 square plus y2 square equals to क्या करोगे? क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम यही आ गया ना, अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स बोला है. तो व्हाट विल यू डू? अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स क्या करेंगे? नथिंग कैन बी डन. What will you do? So what is to be done in this case is, तुमने डायरेक्टली स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया. This is something wrong. This is the third time I am noticing that you are not putting your phone on silent mode. Then in such cases क्या करना? What you must do is, it is y1 by a equal to sin omega t. Sin omega t. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना. Then you have y2 by b equals to cos omega t. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो. अब स्क्वायर एंड ऐड करो. Now square and add. See what happens. What you will get in this case is
y1 square upon a square plus y2 square upon b square equals to sin square omega t plus cos square omega t, that is 1. So y1 square upon a square plus y2 square upon b square equals to क्या आएगा 1. इसका इक्वेशन है ellipse. So the motion is elliptical. Option number C. Verify कर लो. It should be option B. है? Yes. Yes. No. Yes. हाँ. हाँ. Good. Next question. अगला question. The composition of two simple harmonic motions of equal periods at right angle to each other, and with a phase difference of pi, results in the displacement of the particle along. Composition of two simple harmonic motions of equal periods. Period same होना मतलब frequency same होना मतलब ओमेगा same है. At right angle to each other and with a phase difference of pi, results in the displacement of the particle along straight line, circle, ellipse, and figure of 8. So it goes like 8. तो बताओ उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, ये भी सिंपल है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो मोशन इमेजिन कर लो. एक है लेटर से y1 विच इज बेसिकली a sin ओमेगा t. दूसरा है y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई. प्लस पाई क्योंकि फेज डिफरेंस पाई, और क्योंकि यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आई कैन टेक दिस टू बी टेम्परली इक्वल. लेट्स सी क्या होता है, नहीं तो फिर अनइक्वल ले लेंगे. व्हाट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई? माइनस 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 साइन ओमेगा टी. ठीक है. साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. और चलो इसको अभी अनइक्वल ले लेते हैं. वाई अनइक्वल बताता हूँ. ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है. करेक्ट. नाउ इफ आई डिवाइड दीज टू, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, y1 y2 मत लिखो, फिर x और y लिखो. बिकॉज इफ यू आर कंफ्यूज तो डोंट वरी, जस्ट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद नोटेशंस, क्योंकि एट राइट एंगल्स बोला है कि नहीं, एट राइट एंगल्स. राइट एंगल तो एक अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा किसके अलॉन्ग होगा? y के अलॉन्ग. इफ वन इज अलॉन्ग x एक्सिस, यू कैन टेक दिस एज x एक्सिस और y एक्सिस. सो लेट अस से दिस इज y एक्सिस. एक ऑसिलेशन अगर अलॉन्ग y एक्सिस है वर्टिकल, तो दूसरा क्या है? अलॉन्ग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल. तो दिस इज x. ठीक, पक्का, श्योर, गुड गुड. अभी क्लियर क्या? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. लेट्स डिवाइड दिस टू. इक्वेशन 1/2. तो लेट अस डिवाइड दिस. तो y by x इक्वल्स टू क्या आएगा? a sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी अपॉन माइनस a2 sin ओमेगा टी. sin ओमेगा टी क्या हो गया? कैंसल हो गया. यस. तो यू हैव y इक्वल्स टू माइनस a1 by a2 x. लेकिन ये कांस्टेंट है, तो इट लुक्स लाइक y इक्वल्स टू mx. तो y इक्वल्स टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन. तो दिस मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. देख लो, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए. है गुड. So let's move to NEET PYQ. So we will solve NEET PYQ. As usual, we will first go to class based. तो हमारा जो मॉड्यूल्स है उसमें क्लास बेस्ड का नीट का पहला PYQ 2015 का क्वेश्चन है. अगेन टू सिंपल क्वेश्चन. When two displacement represented by, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है y1 equal to a sin omega t, is it simple harmonic? Yes. And the other displacement y2 equal to b cos omega t, it is also simple harmonic? Yes. Just superimpose the motion is, हमने ऑलरेडी शो करके रखा है कि जब आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हो, y1 plus y2 करते हो, तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक. वी हैव शोन दिस इन थ्योरी क्लासेस, तो मैं वापस से नहीं करूंगा. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज यू नो इज एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट का स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड का स्क्वायर. तो डन. सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो जो आपने थ्योरी क्लासेस में सीखा था वो भी आपको यहाँ पे काम आ रहा है। तो रिमेंबर, मैं और बता देता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ टू एस एच एम इज अगेन एन एस एच एम। कंडीशन था फेज शुड बी सेम, मतलब ओमेगा टी एंड ओमेगा टी शुड बी सेम। अब ये फेज सेम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, यू विल कम टू नो इन अ वाइल। तो ये जो ओमेगा टी है ना, वो दोनों का सेम होना चाहिए। राइट, एक का ओमेगा टी एक का टू ओमेगा टी नहीं चलता है, तो फेज शुड बी सेम। और इस केस में जो एस एच एम है, इट इज रिजल्टेंट मोशन इज एस एच एम विद एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नथिंग टू राइट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, a particle executes linear simple harmonic motion with amplitude of 2 centimeter. So you have a particle which executes linear simple harmonic motion with amplitude of 2 centimeter. When the particle is at 1 centimeter, तो देखो अगर आपको क्वेश्चन को सिंपल करना है ना, एम्पलीट्यूड 2 था और पार्टिकल 1 पे है, मतलब x इक्वल टू a/2 है, x इक्वल्स टू a/2 है। फ्रॉम द मेन पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू, इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो x इक्वल टू a/2 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकंड इज वेरी सिंपल। आपको बोला है एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर और आपको पोजीशन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली a/2 है, तो काम में आएगा आपको। एंड दे आर टेलिंग यू कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आर सेम। व्हाट इज वेलोसिटी? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या था वो? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसे होता है कि नहीं? यस और नो? यस यस, कैंसल एंड दोनों में से एक कैंसल, गुड। तो x की वैल्यू इज a/2, तो दिस इज a स्क्वायर बाई 4, तो a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ओमेगा x, राइट। हाउ मच इज दिस? अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू x। व्हाट इज x? व्हाट इज x? a/2। तो यहां से ये √3, a स्क्वायर का रूट इज a, 4 का रूट इज 2 पाई बाई t और a/2 हो गया। क्या हो गया? कैंसल। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? हाउ मच इज टाइम पीरियड फ्रॉम हियर? 2 पाई बाई √3। तो 2 पाई बाई √3 कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी है, यस। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 2015 नीट, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, टू सिंपल। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, then its time period of vibration will be. Do you remember what is the maximum acceleration of a particle performing SHM? Omega square e, इसी को बस इन्होंने अल्फा बोला है, डन। and maximum velocity is beta. You remember what is maximum velocity of particle performing SHM? Omega e, बराबर है ना? पक्का पक्का। इसी को इन्होंने क्या बोला है? बीटा। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यू हैव ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा। ए और ए, एक ओमेगा हो गया कैंसल, तो ओमेगा इक्वल्स टू बचा अल्फा बाय बीटा, बट ओमेगा इटसेल्फ इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड विच इज अल्फा बाय बीटा, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बीटा बाय अल्फा। तो 2 पाई बीटा बाय अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अभी जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट तीनों एग्जाम में भी आया है, दिस इज पीवाईक्यू ऑफ सीईटी आल्सो। अगर मेरे को याद है, इफ आई रिमेंबर, मे बी आई एम रॉन्ग, but this is also a PYQ of JEE mains, and this is also PYQ of NEET. Same question, exactly same question. A particle is executing SHM along a straight line. A particle मतलब एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, एक ही पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड और ओमेगा सेम रहने वाला है। is executing SHM along a straight line. Its velocity at distance x1 and x2 from the mean positions are v1 and v2 respectively. Its time period is good. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है
at distance x1 velocity is v1 and at distance x2 velocity is v2. You know what is velocity? It is omega under root of a square minus x square, तो x1 square and omega under root of a square minus x2 square. omega 1 a1 omega 2 a2 मत लिखना, क्योंकि मैंने अभी बोला सेम पार्टिकल है तो ओमेगा सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा. अगर दो पार्टिकल होते तो यू कुड हैव ओमेगा 1 ओमेगा 2 a1 एंड a2, बट द पार्टिकल इज सेम, सो ओमेगा एंड a आर सेम. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट दिस? तो ऑप्शंस विल हेल्प यू आउट इन दिस केस. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें तुमको v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर दिख रहा है, इधर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर. एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है, लेकिन 3 जगह पे क्या है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो योर बेस्ट चांस इज टू स्टार्ट विथ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो एक काम करना, इसको स्क्वायर कर लो. तो व्हाट यू विल डू हियर इज स्क्वायर दिस वन. तो ये आ गया v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. गुड. एंड v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. फिर तुम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर लो. तो मैं हिंट ले रहा हूँ खुद ऑप्शंस में से टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ऑप्शंस ही आपको हिंट दे देंगे करना क्या है. तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो यू हैव ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. करेक्ट. Good, good. Then omega square common निकाल लो. So you have v1 square minus v2 square equals to omega square taken out common. You have a square minus x1 square minus a square minus minus plus x2 square. तो जब ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये a स्क्वायर माइनस हो गया, लेकिन x2 स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका कैंसल आउट. इसका मतलब अब v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर पॉजिटिव था, x1 स्क्वायर नेगेटिव है. मतलब ऑप्शन वही होगा जिसमें v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो. चेक करो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, राइट, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और ऑप्शन ए में न्यूमरेटर क्या है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. तो आंसर ए होना चाहिए. विल कंप्लीट दिस, आंसर ए होना चाहिए. ए है ना? यस, ए है. बट कंप्लीट तो कर लेंगे, आपको टाइम पीरियड पूछा था ना, टाइम पीरियड. तो यू हैव v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. टेकिंग रूट, if I take square root, v1 square minus v2 square upon x2 square minus x1 square equals to omega. So v1 square minus v2 square upon x2 square minus x1 square equals to omega is 2 pi by time period. So therefore time period t equals to, t यहाँ पे आया, ये वहाँ गया, under root of x2 square minus x1 square upon v1 square minus v2 square. Option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बाय द वे, अब अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला को तुम एज अ टूल यूज कर सकते हो. मैं बताता हूँ कैसे. आपको इफ यू रिमेंबर, नहीं तो आपके पास नोट्स होंगे जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं फॉर योर स्टेट बोर्ड, प्रिंटेड नोट्स है. टेक आउट दोज नोट्स. देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें x1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी और 6 सेंटीमीटर पे v1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, ऐसा कुछ था. और x2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर था और v1 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड था. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर तुमको ये याद रहा तो तुम्हारे बाकी के काम भी आसान होते हैं. सो इफ यू रिमेंबर दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन योर स्टेट बोर्ड का बुक where they told you कि at x1 equals to 6 centimeter velocity v1 is 8 centimeter per second and at x2 equals to 8 centimeter velocity v2 is 6 centimeter per second. मुझे याद है यही वैल्यूज थे और आंसर शायद पाए था, शायद 2 पाई या पाई जो भी होगा, विल वेरीफाई. तो हमने सॉल्व किया है, इसको वेरीफाई कर लेंगे. तो t equals to 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2. what is x2? 8. What is 8 square? 64. x1, what is x1? How much? 6. 6 square is 36. v1, what is v1?
64, v1 इज 8, उसका स्क्वायर माइनस 36, तो ये तो कैंसल आउट हो गया ना, तो ये कैंसल आउट हो ना, तो रूट ऑफ 1 इज 1, तो आंसर कितना है 2 पाई। तो आंसर वहां पे 2 पाई था क्या, 6.28 सेकेंड हमने लिखा है, करेक्ट 6.28। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो फिर दिस कैन बी यूज एज अ टूल, लेकिन याद रखना दिस कैन बी यूज एज अ टूल ओनली फॉर अ सिंगल पार्टिकल, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम, उसको कंबाइन करके सिंगल बना रहे हो उसके लिए नहीं होता, ये सिंगल पार्टिकल का है। तो इफ यू रिमेंबर दिस विल हेल्प यू आउट। अगला क्वेश्चन, अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग, is a pendulum which is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator। मतलब पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लो, करेक्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। मतलब ए की वैल्यू दी है एट x इक्वल्स टू 5 फ्रॉम द मीन पोजिशन, द टाइम पीरियड इज सच अ जोक। What is acceleration? Omega square x. I know it is minus plus, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट, इट्स अ जोक, एब्सोल्युटली अ जोक। ये वैल्यू कितनी है, ए कितना है 20, ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 1 जा 5 4 जा, तो ओमेगा स्क्वायर इज 4, तो ओमेगा इज 2, इफ ओमेगा इज 2, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड इज पाई, तो यू हैव टी इक्वल्स टू पाई सेकेंड, तो पाई या फिर 3.14, whichever is the answer, they have given you pi। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed, the spring has negligible mass, when the mass m is slightly pulled down and released it oscillates with a time period of 3 seconds, when the mass m is increased by 1 kg the time period of oscillation becomes 5 seconds, the value of m in kg is। अब ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड्स में था, सिर्फ वहां पे ना आपको पहले केस में मास m1 बोला था, फिर बोला था इसी मास m1 को और एक मास लगा दो, m1 प्लस m2 हो गया, कंपेयर मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ m1 बाय m2, जो 1/3 आंसर आया था, याद है मेरे को 1/3 आया था, मेरे को क्यों याद रहता है, बिकॉज हर साल पढ़ाना पड़ता है ना, तो 1/3 आंसर था वो केस में। गुड, अब दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास पहले केस में एक स्प्रिंग है जिसका अपर एंड इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, द लोअर एंड हैज अ मास ऑफ m1 and in the first, in the initial case time period let us say is t1 या फिर जो भी बोलना होगा वो, चलो t बोल देते हैं, कितना टाइम पीरियड इसका 3 seconds, 3 seconds, मतलब you pull this and release this, it performs oscillatory motion with a time period of 3 seconds। in case 2 what you are doing is you are just putting an additional mass of 1 kilogram below this, तो इसके नीचे तुमने एक एडिशनल मास डाल दिया ऑफ 1 किलोग्राम, तो नाउ द टोटल मास बिकम्स m1 प्लस 1 kg। तो पहले केस में m था m1, दूसरे केस में m डैश है m1 प्लस 1 kg, एंड टाइम पीरियड t डैश बिकम्स हाउ मच 5 सेकेंड। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट what is the time period, है ना, द टाइम पीरियड ऑफ द, नहीं, द वैल्यू ऑफ मास इन kg। सो आपको m1 की वैल्यू पूछी है kg में, सिंपल, डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, यस, do you remember omega is root of k by m, yes, so 2 pi equals to, sorry, t equals to 2 pi root of m by k। स्प्रिंग सेम था क्या, हाँ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, 2 pi भी कांस्टेंट है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया रूट m, इसका मतलब t डैश बाई t इक्वल्स टू m डैश बाई m, तो t डैश की वैल्यू 5 थी और t की वैल्यू 3 है ना, t की वैल्यू यस 3 है, m डैश की वैल्यू m1 प्लस 1 है, m डैश इज m1 प्लस 1 एंड दिस इज m1, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 25 बाय 9 इक्वल्स टू m1 प्लस 1 अपॉन m1, 25 m1 इक्वल्स टू 9 m1 प्लस 9,
तो यू हैव 16 m1 इक्वल्स टू 9, 25 में से 9 या 16, तो m1 इक्वल्स टू 9/16, तो आंसर इज 9/16 kg, 9/16, ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। 2017 का PYQ है, समथिंग टू सॉल्व। A spring of force constant K is cut into length of ratio, important ना। तो आपने एक स्प्रिंग था, इसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया, सच दैट द रेशियो ऑफ लेंथ, तो जो पहला स्प्रिंग है उसका लेंथ इज L1, दूसरे का लेंथ इज L2, तीसरे का लेंथ इज L3। तो आपको रेशियो ऑफ लेंथ दिया है L1:L2:L3 दिया है 1:2:3, ऐसा बोला है आपको। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट अ जोक। अब तुमने एक वायर को 3 पार्ट्स में कट कर दिया, फिर तुमने तीनों को वापस सीरीज में लगा दिया, तो वापस वही वायर बन गया। मैंने तुमको बोला एक वायर लो, 3 टुकड़े में काटो, और फिर बोला उन 3 टुकड़ों को वापस वैसे ही लगा दो जैसे थे, तो वापस से क्या बन गया, सेम वायर। तो इन्होंने क्या बोला है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। तो जोक है K डैश इज इक्वल्स टू K, क्योंकि तुम तीनों को वापस एंड टू एंड कनेक्ट करोगे तो फिर वही स्प्रिंग बन जाएगा ना, फोर्स कांस्टेंट सेम होगा। सेम कब नहीं होगा, व्हेन यू कनेक्ट देम इन पैरेलल। तो आगे क्या बोला है, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज K डबल डैश। अब when you connect in series तो force constant remains same, but when you connect in parallel तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। अब K डैश पहले फाइंड करना पड़ेगा। Now how do you solve for this? If you remember F इक्वल्स टू KX होता है, रिमेंबर ये मॉड वैल्यू है, माइनस होता है मुझे पता है, तो K क्या होता है, मॉड ऑफ F बाय X। और मैंने बोला था कि नॉर्मली जो मास तुम लगाते हो that mass is same, spring 1 हो या spring 3 हो, masses are same, which implies that spring constant is inversely proportional to length. So spring constant K is inversely proportional to length, याद रखना है, spring constant is inversely proportional to length। तो जो 3 पार्ट्स तुमने किए K1, K2 और K3, उसका रेशियो क्या आएगा, 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3। पक्का पक्का, हाँ कि ना, यस। तो 1:1/2 is to 1/3। हाउ डू सिंप्लीफाई दिस, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा, मतलब 3 × 2 6, तो 6:3:2, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6/2 is 3, 6/3 is 2, तो ये आपको मिल गया K1:K2:K3। इसका मतलब जो K1 की वैल्यू होगी वो होगी 6 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट, 6 टाइम्स ऑफ x बोल सकते हो, y बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो k ही बोल दो, इजी हो जाएगा काम, क्योंकि ओरिजिनल फोर्स कांस्टेंट क्या था, k। तो वैसे भी कॉमन फैक्टर को तुम x बोल दो, y बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, a बोलो, b बोलो, k बोल दो, चलो k बोल देते हैं। तो K2 इक्वल्स टू क्या होगा, 3K, और K3 क्या होगा, 2K। हमको पैरेलल में चाहिए था। अब आपको याद होगा पैरेलल में जब तुम कनेक्ट करते हो, डू यू रिमेंबर व्हेन यू कनेक्ट इन पैरेलल, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 प्लस K2 प्लस K3। स्प्रिंग्स इन पैरेलल का फॉर्मूला इज सिमिलर टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, एंड स्प्रिंग इन सीरीज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल इज K1 प्लस K2 प्लस K3। तो हमारा काम था टू फाइंड आउट K1, K2 एंड K3। ओके, तो मिल गया। तो देयरफॉर K डबल डैश इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 विच इज इक्वल्स टू 6K प्लस 3K प्लस 2K। हाउ मच इज दैट, 11K। क्या पूछा था तुमसे, K dash by K double dash। So they're asking you what is K dash by K double dash। K dash is K, this is how much, 11K। तो आंसर is 1:11, 1:11, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी होना चाहिए है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विल मूव टू neat home base, which we are supposed to be for you to do it at home, but anyways we'll do it here itself. Question number 1, joke 2019। बहुत सारे जोक है बट कंडीशन है कि जोक समझने के लिए वो ह्यूमर भी होना चाहिए, विच इज मैथमेटिकल ह्यूमर हियर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट साइकिल इज ऑफ कोर्स जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि साइन और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि साइन वेव और कोसाइन वेव का एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज जीरो ही होता है। मैं बताता हूँ कैसे। नाउ इट्स अप टू यू कि तुमको डिस्प्लेसमेंट को साइन लेना है कि कॉस लेना है, वो तुम्हारी मर्जी है। इफ वांट टू टेक साइन डज नॉट मैटर रियली। वांट टू टेक कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन वेव है। और याद रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल में एवरेज जीरो आ गया तो वेलोसिटी जीरो ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू सी, इफ आई टेक डिस्प्लेसमेंट टू बी साइन वेव, इट इज समथिंग लाइक दैट। दिस इज जीरो, here you have t by 4, here you have, if you remember, t by 2, here you had 3t by 4, and lastly you have a t, मतलब motion complete, one oscillation complete t पे। You see, one full cycle sine wave is made up of two parts, two equal but opposite. Positive half cycle, negative half cycle. What is the average of plus 2 minus 2? You answered it. तो जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू उतना ही नेगेटिव में वैल्यू है। हाँ, अभी जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, जितना एम्पलीट्यूड यहाँ है ना, जितना एम्पलीट्यूड यहाँ है उतना ही यहाँ पे है। और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते हो थोड़ा गलत हो गया तो सेम ही आएगा, तो जीरो हो गया, राइट। तो वेलोसिटी का एवरेज भी क्या होगा? जीरो। अगर वैसा नहीं, तो अगर ये साइन वेव है, डिस्प्लेसमेंट साइन वेव है, जब डिस्प्लेसमेंट इज साइन वेव, व्हाट विल बी वेलोसिटी? कॉस वेव। कौन सा वेव? कॉस वेव। तो कॉस वेव होगा, वो ऐसा दिखने वाला है आपको। तो यहाँ देखा, ये 1/4 पार्ट पॉजिटिव साइकिल, half negative cycle, and 1/4 part positive cycle. 1/4 positive is 2 quarters, which is 1/2. 1/2 positive, 1/2 negative. Half gone. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन फिगर। सो ये जो डायग्राम आपको दिया है ना, इसमें आपको चार चीजें बताई है। रेडियस ऑफ सर्कल दिया है क्या? 3 मीटर, यस। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दिया है क्या? 4 सेकेंड, यस। इनिशियल पोजीशन मतलब देखो, इफ यू नोटिस थिंग्स केयरफुली, यहाँ पे लिखा है p t इक्वल्स टू 0, मतलब पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, बोलना नहीं अब। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग एसएचएम के इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम बनाते हैं, नॉर्मली इक्वेशंस ऑफ एसएचएम बोल रहा हूँ, सर्कुलर मोशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एसएचएम बोल रहा हूँ। ये सर्कुलर मोशन है, बताता हूँ। नॉर्मली पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है? मीन से कि एक्सट्रीम से? मीन से। अब आगे पढ़ो, मीन तुम याद रखना, तुमने बोला मीन, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या आता है? साइन ओमेगा टी व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, कॉस। वेरी गुड। आगे बोला है y प्रोजेक्शन, x प्रोजेक्शन नहीं, कौन सा प्रोजेक्शन? y। तो तुम ये पार्टिकल तो परफॉर्म कर रहा था यूसीएम, लेकिन तुम उस यूसीएम को क्या देखने वाले हो? प्रोजेक्शन, विच इज एसएचएम, जो तुमने थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी शो किया है क्या? और तब हमने लिया था एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। मैंने आपको तभी बताया था इट कैन बी अलोंग एनी डायामीटर, यू कैन टेक अलोंग वाई ऑल्सो। तो इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में वाई प्रोजेक्शन। वेरी गुड। तो वाई प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर रोटेटिंग पार्टिकल पी इज, तो जो पार्टिकल है ये रोटेट हो रहा है, इट इज चेंजिंग पोजीशन, ओके, करेक्ट। तो जब पार्टिकल इनिशियली पी पॉइंट पे था, प्रोजेक्शन पे पी पे था। जब पार्टिकल नए पॉइंट पे आया, प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। तो प्रोजेक्शन को मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, प्रोजेक्शन यहाँ आया, राइट। सो व्हाट प्रोजेक्शन इज डूइंग, क्या कर रहा है प्रोजेक्शन? क्या कर रहा है? एसएचएम क्या कर रहा है?
ऐसे along with which axis? Y की x axis y, तो y equals to एम्पलीट्यूड. आपको ये याद होना चाहिए, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था उसका जो रेडियस होता है उतना ही एम्पलीट्यूड होता है प्रोजेक्शन का. तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड हियर? 3. राइट. पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया? कहां से? पी पॉइंट से, एक्सट्रीम से तो साइन की कॉस, राइट. ओमेगा टी ओमेगा टी, तो 3 cos ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. दिस इज इक्वल्स टू 3 cos. व्हाट इज टाइम पीरियड गिवन टू यू? 4 सेकेंड. तो यू हैव y इक्वल्स टू 3 cos ऑफ पाई बाय 2 t. तो 3 cos पाई बाय 2 t कहाँ है? फर्स्ट. कहाँ है? फर्स्ट. और अगर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया होता तो सेम नहीं आता, माइनस के साथ आता. क्या आता? माइनस के साथ आता. ठीक है, तो माइनस के साथ आता. वो ऑप्शन में दिया नहीं है आपको. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, आई वॉन्टेड टू कम टू दिस क्वेश्चन. मैं कब से वेट कर रहा था, ये क्वेश्चन आएगा 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 आएगा. अभी आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन? अब प्रॉब्लम हो जाएगा आपको यहाँ पे. क्यों बताता हूँ. मैंने आपको बोला था कि दो SHM का एडिशन SHM होता है. कंडीशन इज दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम. तो ऑप्शन ए तो है. यस. ऑप्शन सी और डी है क्या? नहीं, क्योंकि एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दूसरे का 2 ओमेगा. इधर भी ओमेगा, इधर भी 2 ओमेगा. एक क्वेश्चन था जो मैं प्रीवियस वीडियोस में से हटाने वाला हूँ. उसका रीजन है, बताता हूँ. मैंने आपको बोला था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी सिंपल हार्मोनिक, बट दैट वाज अंडर स्पेशल कंडीशन. एंड I not remember, I assume, I am sure, it's not even an assumption, I am sure कि आपको वो जो कंडीशन थी, जो स्पेशल कंडीशन थी, वो याद ही नहीं होगी. तो आई जस्ट टेल यू कि वो कंडीशन तुमको याद नहीं है, मेरे को पता है, अच्छे से याद है. क्वेश्चन था ऐसा जहाँ पे हमने शो किया था हमने. बताता हूँ. ये देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन. मैंने आपको तब बोला था कि नॉर्मली साइन स्क्वायर ओमेगा टी SHM नहीं होता है नॉर्मली. लेकिन अगर आप इनिशियल फेज 0 लेते हो, वेयर वी हैव शोन कि अगर इनिशियल फेज स्पेशल केस बन गया, इनिशियल फेज की वैल्यू अगर 0 दी होगी आपको, तो देन दिस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मे आल्सो रिप्रेजेंट्स SHM with frequency of omega by pi, right? Correct. लेकिन then after going through all the syllabus that is given to you, उन्होंने हर जगह पे सिंपल केस लिया है. मतलब दे आर जस्ट टेलिंग यू कि यू डोंट हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ स्पेशल केसेस. आपको नहीं दिया, आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस. इसका मतलब आपको ये जो है ना, ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रीट करना पड़ेगा. एक्चुअली इट इज सिंपल हार्मोनिक अंडर स्पेशल केस. तो रिमेंबर, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टू कम, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था सिंपल हार्मोनिक ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा पाई. हमने प्रूव भी किया है, वी हैव शोन फ्रीक्वेंसीज ओमेगा बाय पाई, लेकिन दैट वाज अंडर स्पेशल कंडीशन. अब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो अभी आया, फिर इसमें तुमको हो जाएगा कंफ्यूजन कि एक केस में हम बोल रहे हैं SHM है, एक में बोल रहे हैं SHM नहीं है. तो हम लोग इन जनरल रूल बना लेंगे कि व्हेनेवर द पावर इज 1 ओनली देन इट इज SHM. ओके. तो 1 पावर छोड़ के 2 3 4 5 कुछ भी आए तो इट इज नॉट एन SHM. तो ऑप्शन नंबर ए. गुड. तो कंडीशन सभी क्या बन गए SHM के? पहला कंडीशन था दे शुड बी अलोंग द सेम पाथ. दूसरा कंडीशन था दे शुड हैव सेम टाइम पीरियड, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी. तो दो SHM का एडिशन इज अगेन एन SHM इफ दे आर अलोंग द सेम पाथ. और सेम पाथ पे नहीं होंगे तो SHM नहीं है. वो आज ही देखा हमने, एक में इलिप्टिकल बन गया था और एक में स्ट्रेट लाइन बन गया था, क्योंकि 90 डिग्री पे थे ना. जब स्ट्रेट लाइन का देखा तो आपको क्या बोला था? दे आर एट 90 डिग्री, मतलब वन इज अलोंग y एक्सिस, अदर इज अलोंग x एक्सिस. तो इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन का. तो रिमेंबर पाथ शुड बी सेम, रिमेंबर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, मतलब टाइम पीरियड शुड बी सेम. एंड आल्सो नाउ रिमेंबर दैट द पावर शुड बी 1. यू कैन नॉट हैव पावर 2 3 4 5 फॉर SHM. पक्का? गुड. अगला क्वेश्चन. The phase difference between instantaneous velocity and acceleration
of a particle executing simple harmonic motion is. What a joke. Do you remember displacement और velocity में phase difference कितना होता है? अरे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा है. डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन वेव, तो वेलोसिटी इज अ कॉस वेव. फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू. वेलोसिटी अगर कॉस है तो एक्सेलेरेशन ये इन्वर्टेड साइन है. अगेन फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू. तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? पाई बाई टू. व्हाट इज पाई बाई टू? 0.55. ऑप्शन ए, फोर्थ का ऑप्शन ए होना चाहिए. चेक कर लो, है क्या? है हो गई. तो इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू गो बैक टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, या फिर इवन बिफोर दैट जब हमने बोला था दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, उसका डेरिवेटिव लिया था तो v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t आया था. एक साइन वेव है, एक कॉस वेव है. साइन और कॉस में पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है. अगला क्वेश्चन. अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म व्हिच अंडरगोस वर्टिकल simple harmonic motion of angular frequency omega. The amplitude of oscillation is gradually increased. The coin will leave contact with the platform for the first time. Last question of your state board, question number 23. स्टेट बोर्ड का जो बुक है, जो मैंने नोट्स दिए आपको स्टेट बोर्ड के, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23. तब मैंने आपको बोला भी था कि लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन असाइनमेंट दिया था, कोई नहीं करके आया, और सेम क्वेश्चन नीट में आया. मैंने वहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास एक, वापस बताना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू कीप रिपीटिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन. डू आई हैव अ कॉइन? यस. सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म, वर्टिकल प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर एक कॉइन है. करेक्ट. एंड यू वर्टिकल प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली द मोशन इज वर्टिकल एसएचएम. एंड देन यू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो एक स्टेज ऐसा आएगा, हाईएस्ट पे दिस कॉइन विल लीव कॉन्टैक्ट. हाईएस्ट पे ही क्यों? पहली बात तो कॉन्टैक्ट लीव करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए. और हाईएस्ट पे ही क्यों? क्योंकि देन यू हैव टू रिमेंबर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में यू हैव सीन. बाय द वे, हाईएस्ट पे इसके लिए भी क्योंकि एसएचएम है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है? एट द एक्सट्रीम पोजिशंस. एक एक्सट्रीम है ऊपर, एक एक्सट्रीम है नीचे. नीचे तो हो नहीं सकता, ऊपर. ऊपर. एंड इफ यू रिमेंबर, ए मैक्स की वैल्यू जी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? जी. ये हमने सॉल्व किया क्लास में. ए मैक्स इक्वल्स टू जी लिखा था क्या? नहीं लिखा था तो तुम एब्सेंट थे फिर. तो यू नीड टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. चलो वापस बता देता हूँ, कोई बात नहीं. वहां पे उस क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा था? 23 नंबर क्वेश्चन बोर्ड्स का. डोंट रिमेंबर, यू डू नॉट रिमेंबर. ठीक है. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस क्वेश्चन. A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude. During vibrations, we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible? 1 hertz का frequency आया था. I remember 1 hertz का frequency आया था. 1 hertz का frequency आया था. Then, right? If the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeter, यहाँ पे amplitude की वैल्यू दे दी, फ्रीक्वेंसी पूछी है इस क्वेश्चन में. और जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे एम्पलीट्यूड पूछा है. तो व्हाट वाज द अप्रोच? यू से दैट कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे टू द पॉजिटिव साइड, क्योंकि वर्टिकल ऑसिलेशंस है तो ऊपर के साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलेरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर है. एंड एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड द ब्लॉक कैन लीव कॉन्टैक्ट. तो ब्लॉक मतलब कॉइन, पिस्टन मतलब व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू हैव. करेक्ट. फिर कंडीशन क्या आया था? एमएक्स इक्वल्स टू जी. एमएक्स इक्वल्स टू जी. अगर ये याद रह जाता ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही क्या था. देयर इज नथिंग टू सॉल्व इन दैट क्वेश्चन. कंडीशन इज दैट यू रिमेंबर. इफ यू रिमेंबर, ओके, तो एमएक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? जी. व्हाट इज एमएक्स? ओमेगा स्क्वायर ए. तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड?
जी बाय ओमेगा स्क्वायर। वेयर इज जी बाय ओमेगा स्क्वायर? ऑप्शन ए है क्या? वैसे होना चाहिए। है क्वेश्चन नंबर 5 का ये। है गुड। तो कैसे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस वो ज़्यादा हायर लेवल का था, इट्स नथिंग। तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट मत करो। वो पता होता तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाता। डन। तो जिनको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 23 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 उसका लास्ट क्वेश्चन है 23, वो चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आपके स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। A particle executes simple harmonic motion with amplitude small a. The period of oscillation is t. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from equilibrium position. From equilibrium position मतलब x equals to a sin omega t. Yes or no? Yes. इन्होंने पूछा है what is the time taken by the particle to travel half the amplitude, मतलब x equals to a by 2. Equation 1 and 2. So from equation number 1 and 2 you have a by 2 equals to a sin omega t. A हो गया कैंसल। 1 by 2 equals to sin omega t. 1 by 2 sin की वैल्यू कब आती है? पाई बाय 6। पक्का ना? पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी मिल गया आपको पाई बाय 6। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी। पाई बाय 6, पाई पाई बाय ओके। देन यू हैव स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T बाय 12, but T by 12, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple pendulum is executing simple harmonic motion with period t. If the length of pendulum is increased by 21%, now I am expecting कि आपको ये अभी पता ही है कि 21% इंक्रीज होना मतलब फाइनल लेंथ इज 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। बार बार L2 इक्वल टू L1 प्लस 21% L1 नहीं लिखने वाले हैं हम लोग। इंक्रीज होना मतलब प्लस होना। अगर पहले L1 था तो अभी 1.21 L1 हो गया। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ इज। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में ये पूछा है कि अगर लेंथ 21% से बढ़ा मतलब L2 1.21 L1 हुआ तो टाइम पीरियड कितना हो गया, ऐसा पूछ रहा है। कितने परसेंट से बढ़ा, राइट? तो यू नो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। जी इज सेम, तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, विच मीन्स दैट T2 बाई T1 10% आंसर है इसका, अंडर रूट ऑफ L2 बाई L1, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि 1.21 व्हाट इज L2 बाई L1? व्हाट इज L2 बाई L1? कितना है? 1.21। L2 by L1 is 1.21. What is root of 121? 11. So what is root of 1.21? 1.1. तो T2 is 1.1 T1। 1.1 मतलब 10% से बढ़ना। T1 प्लस 0.1 T1 मतलब T1 प्लस 10% ऑफ T1, तो 10% से बढ़ना। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass m is attached to a spring, oscillates every 2 seconds. If the mass is increased by 2 kg, then the time period increases by 1 second, increases by 1 second. The initial mass is, अभी जो सॉल्व किया था वही तो क्वेश्चन है। अभी नहीं किया क्या सॉल्व आपने? what is m1 in the first case? कितना मास दिया हुआ है? अच्छा सम मास, ठीक है। m1 की वैल्यू m है। दूसरे केस में m डैश बोल देता हूं मैं, m डैश। दूसरे केस में है m डैश। व्हाट इज m डैश? m1 plus by how much you increased? 2 kg. What was initial time period? It was 2 seconds. And what is the final time period? It is initial plus 1, क्योंकि increases by 1 second बोला है, तो 2 plus 1 that is 3 seconds. अभी तो हमने देखा था टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, है ना? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। अभी सॉल्व किया आज 10-15 मिनट पहले। t डैश बाई t इक्वल्स टू रूट ऑफ m डैश बाई m। What is t dash? 3. What is t? 2.
व्हाट इज m डैश m1 प्लस 2 और अपॉन m1, और आपको m1 ही पूछा है, इनिशियल मास मतलब m1 पूछा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 9/4 m1 plus 2 by m1, just solve this, 9m1 equals to 4m1 और 8, तो 9 में से 4 गए तो 5m1 equals to 8, तो m1 equals to 8/5, 8/5 is 1.6 kg, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए दिया है ना, ऑप्शन ए पक्का पक्का, यस।